Types of research. In this session, we will discuss about the quasi-experimental designs today. First, as we can have some new learners with us, so we will again define the research. What is research? Research is a systematic method of investigation or a study with an objective. First is to gain knowledge, and second one is to find answers to questions or to solve practical life problems. So I'll be revising the definition in each series so that you can come up with this whole fact that what exactly the research means. So in the previous session, we had a general classification of research. We discussed about it. So we classified research on the basis of two major aspects. First one is based on the purpose and the second one is based on the method or approach. So when we look for to increase our knowledge as a researcher, when we go for basic research, when we look for solutions or we look for some problem solvings and we look for some applications as an interventions, we want to test some interventions then we go for applied research. Then second aspect, major one is based on the method or approach. On this basis, the research is classified into three major categories. First is the quantitative. Quantitative means anything that can be counted, anything that is presented in the terms of digits, numerical data, numbers, how much or how many, that is quantitative. For example, how many pencils are there in a box? Then yes, we can say there are 10 pencils in a box. So we are justifying and presenting the numbers, that is 10 in the numbers or digits. Second is what we discussed is about qualitative data. Qualitative data or the researches is what that like they are telling about the nature or quality of anything. Like when we talk about the numbers of the pencil, it is 10. But when we talk about the color of the pencils, then we will say that half pencils are of yellow color and half pencils are of, like 5 pencils are of yellow color and out of 10, 5 pencils are of any color. So we are demonstrating the quality or the nature of a pencil. So this is qualitative, and the mixed method, when we combine the quantitative and the qualitative all together, then we call it as mixed methods. So in the previous session, that was completely about explanations of the experimental designs. We covered the topic and we also covered the pre-experimental designs. Today in this session, we will discuss a very important topic, that is quasi-experimental designs, that is categorized under the experimental studies. Experimental studies we are discussing, pre-experimental we have covered in the previous session, and today we are going to cover the quasi-experimental designs. But before we proceed further, I just want to show the difference to all of you कि जो हम एक umbrella term use करते हैं, that is experimental designs, उस umbrella term में तीन major categories divide होती हैं, right? First is the pre-experimental designs, second one is the quasi, and the third one is the true experimental designs. And we have also studied in the previous session कि 4 core ऐसे elements होते हैं जो experimental research में पाए जाते हैं. अब प्री, क्वासी और ट्रू में क्या मेजर डिफरेंस है, ये इन्हीं चारों कोर एलिमेंट्स के बिहाफ पे या बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, दैट इज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, तो उसमें जो पहला कोर एलिमेंट है, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये किया जाता है to study the cause and effect relationship, right? Cause क्या है? Independent variable, और effect क्या है? Dependent variable. इन दोनों के बीच में अगर हम effect देखना चाहते हैं, study करना चाहते हैं, outcomes को देखना चाहते हैं as a result, then what we will do? We will, as an experimentation, we will manipulate the independent variable. तो इन प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड इन क्वासी एंड इन ट्रू, तीनों में ये हमें देखने को मिलता है. फॉर दैट रीजन ओनली दे आर इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, बिकॉज दे हैव टू वेरिएबल्स टू स्टडी. One is independent variable and the second one is dependent variable. Second feature of the experimentation is the randomization. So when we talk about pre-experimental studies, no randomization is followed, and even quasi में कोई randomization follow नहीं होता. लेकिन yes, true experimental studies में randomization follow किया जाता है in the selection of the samples. Okay. Third important core element is the control group, presence of control group. So pre-experimental designs does not have any control group, while the quasi has the control group, and the true experimental designs also has the control group. Fourth core element that you will not see in any books, that is my own made kind of a fourth core element, that is comparison. Because I have already explained, comparison बहुत important होता है कि हम comparison within the group कर रहे हैं या between the groups कर रहे हैं या बहुत सारे among the groups हम उसको कर रहे हैं, right? तो कंपैरिजन अगर आप नहीं करेंगे तो आपके आउटकम्स आपको ठीक से पता नहीं चल पाएंगे कि कितने अच्छे हैं. तो कंपैरिजन प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में होता है, चाहे वो विद इन द ग्रुप्स ही क्यों ना हो.
राइट। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, तो 2 ग्रुप्स के बीच में होता है। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम कितने भी ग्रुप्स बना सकते हैं, या हमारे पास प्रॉपर 2-2 कंट्रोल ग्रुप होते हैं, 2-2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, तो हमारी जो रिसर्चेज है बहुत ज्यादा, कहना चाहिए हाई डेफिनेशन या बहुत ज्यादा हाई इंटरनल वैलिडिटी की मानी जाती है। तो इस स्लाइड को आप पॉज कर लीजिए और इसको अच्छे से समझिए, बिकॉज यहां अगर आपने इस स्लाइड को समझ लिया, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लिया, तो आगे कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि ये वो रिसर्च की स्टडीज हैं जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कर रहे हैं स्टडी, लेकिन सिर्फ इसमें हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वेयर एज कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन इनमें नहीं होता है। ठीक, अभी आज हम बात करेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की। तो मैं आज आपको इसमें बताती हूँ कि ये प्री से क्वासी कैसे डिफरेंट है और क्वासी में क्या क्या एडिशनल फीचर्स हैं जो इसको एक लेवल ऊपर, यानी प्री अगर पहला है तो सेकंड लेवल पे क्वासी को क्यों सेकंड लेवल पे माना जाता है, एंड व्हाई दे आर बेटर देन प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। So again, we will have a quick recap of the core elements. First core element is again the effect of independent variable on the dependent variable, right? To study the cause and effect relationship, जिसमें हम manipulation कर रहे हैं या intervention दे रहे हैं या experiment कर रहे हैं of the independent variable. Second is randomization. So what exactly is randomization? Randomization is कि जो भी आपके स्टडी के सैंपल्स हैं उनको इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले टू गेट सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इन योर स्टडी। तो सारे सैंपल्स बिल्कुल फेयर तरीके से सेलेक्ट हो सकें, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे भी हो सकते हैं, बस रैंडमली हमने उन्हें सेलेक्ट किया है और हमें रैंडम डेटा मिलेगा, तो हमारी रिजल्ट के जो हमारी स्टडी के जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा क्लियर एंड ट्रुथफुल होंगे। ठीक है, इसमें रेंडमाइजेशन मींस आप एज अ रिसर्चर अपना कोई फेवरिज्म, अपनी कोई प्रायोरिटी या अपना कोई तरीके का बाइस आप नहीं इंड्यूस कर रहे हैं इन द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द participants or the subjects or your sample. Okay, so this is randomization. Next is the control group, third one. Control group means अगर प्रॉपर कंट्रोल ग्रुप आपने बनाया है तो आप उस कंट्रोल ग्रुप पे अपना कंट्रोल रखेंगे कि उसको किसी तरीके से उसके सैंपल्स को या उसके पार्टिसिपेंट्स को अफेक्ट ना हो। जो भी एक्सपेरिमेंटेशन होगा वो सीधा का सीधा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगा। तो कंट्रोल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ कोर एलिमेंट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि बाद में आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर करते हैं ताकि स्टडी के आउटकम्स को आप बेटर समझ सकें। And the next one or the last one is the comparison. As I have already stated कि comparison बहुत जरूरी है। आप अगर experimentation कर रहे हैं और आपने comparison को बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया है कि ये within the group है, जैसे हम कहते हैं ना सिंगल ग्रुप, उसी में आप ग्रुप को टेस्ट कर रहे हो, या एक ही ग्रुप का प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट आप कर रहे हो, या 2-3 ग्रुप हैं उनके बीच में आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कर रहे हो, तो कंपैरिजन ही आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को यूनिक बनाता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको आप याद कीजिए और समझिए, क्योंकि आगे आपको यही हेल्प करेंगे एक्सपेरिमेंटल समझने में। इंटरनल वैलिडिटी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस की थी, मैं क्विकली एक बार और बता देती हूँ फॉर एनीवन हु हैज जॉइंड अस टुडे। इंटरनल वैलिडिटी वो हमारी डिग्री है कॉन्फिडेंस की, जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एज अ रिसर्चर कहते हैं कि यस, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आए हैं, मेरी इंटरवेंशन की वजह से आए हैं, मेरे एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से आए हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कहेंगे तो आपकी इंटरनल वैलिडिटी हाई मानी जाएगी। बट वो इंटरनल वैलिडिटी हाई मानने के लिए आपके पास ये चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी स्टडी के अंदर। अगर आपने एज अ रिसर्चर इन सबको इन्वॉल्व किया है, देन यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड योर रिसर्च एज एन एक्सपेरिमेंटेशन। एंड अगर जितने ये चारों एलिमेंट्स आपकी रिसर्च में प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज्यादा हाई इंटरनल वैलिडिटी रहेगी, जितने कम होंगे उतनी मॉडरेट होगी, और जितने कम से कम होंगे उतनी ज्यादा इंटरनल वैलिडिटी आपकी रिसर्च की कम मानी जाएगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वासी टुडेज टॉपिक। क्विक रिवीजन था नए जॉइनर्स के लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। क्वासी नाम बहुत प्यारा है और इसके फीचर्स क्या है, लेट्स वील अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज इंटरवेंशन और योर ट्रीटमेंट और योर एक्सपेरिमेंट and the dependent variable that is your outcome, but without the random assignment of your sample. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था क्वासी में रेंडमाइजेशन नहीं होता है। So again, so these studies are a bit stronger than the pre-experimental designs because they have strong comparison and control groups. ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में सिर्फ मैनिपुलेशन था, ना कंट्रोल था, कुछ भी नहीं था, कंपैरिजन था।
लेकिन क्वासी में कंपैरिजन भी है, कंट्रोल भी है और आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस चीज को प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से एक लेवल ऊपर लेके जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल से एक लेवल नीचे क्यों है, व्हाई दे आर लैगिंग इन द बिटवीन, ये बीच में क्यों है, क्यों, क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह ये लैक करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज नोन एज रैंडमाइजेशन। सो दिस इज अबाउट क्वासी। अदर फीचर्स, इसमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं होता है, कंपैरिजन होता है ग्रुप्स के बीच में या रिपीटेड मेजर्स में भी आप कर सकते हो, और इसकी इंटरनल वैलिडिटी लो नहीं होती बल्कि मॉडरेट मानी जाती है क्योंकि इसमें कंट्रोल ग्रुप भी प्रेजेंट है। So we will discuss the first ever quasi-experimental design today. First design for today's discussion is the non-equivalent control group design. स्ट्रक्चर इस ग्रुप का ऐसा होता है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। नाउ इफ यू एज अ रिसर्चर वांट टू स्टडी कि आप इफेक्टिवनेस चेक करना चाहते हो ऑफ हैंड हाइजीन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द नर्सेज हैंड हाइजीन प्रैक्टिस एंड यू वांट टू फॉलो दिस क्वासी एक्सपेरिमेंटल non-equivalent control group design, then how will you frame or structure your research? You will make two groups. Okay, you will make two groups. पहला ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें आप वार्ड ए की नर्सेस को लेंगे, दूसरा ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप जिसमें आप वार्ड बी की नर्सेस को ले लेंगे। दोनों ग्रुप्स को आपने बनाया है लेकिन आपने रेंडमाइजेशन का प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं किया है, तो ग्रुप्स तो बनेंगे, एक्सपेरिमेंटल भी बन गया, कंट्रोल भी बन गया विदाउट रेंडमाइजेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, नाउ व्हाट यू विल डू, दोनों ग्रुप्स में, कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप प्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे। हैंड हाइजीन ट्रेनिंग का जो आपका इंटरवेंशन है या आपका ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जैसा कि नाम कहता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही आप हैंड हाइजीन ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे और उसके बाद आप इसका पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। वेयर एज कंट्रोल ग्रुप में आप प्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे और कोई भी हैंड हाइजीन से ट्रेनिंग रिलेटेड आप उनको नहीं देंगे बिकॉज इट इज अ कंट्रोल ग्रुप एंड आफ्टर दैट यू विल कंडक्ट द पोस्ट टेस्ट। तो पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स रहेंगे हम कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप को। फाइन। तो अब क्योंकि इसका नाम कहता है डिजाइन का नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, तो इसका नाम ये इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें रेंडमाइजेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है दो ग्रुप्स बनाने के टाइम पे। ये दोनों ग्रुप बने हैं, लाइक मैं अगर क्रिटिक्स निकालूं तो मैं निकाल सकती हूँ कैसे, ग्रुप जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जो वार्ड ए है उसमें स्मार्ट नर्सेज हैं, एजुकेटेड नर्सेज हैं, हायर क्वालिफाइड नर्सेज हैं, राइट, उन्होंने पीजी कोर्सेज किए हैं, डॉक्टोरल कोर्सेज किए हैं, वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, उन्होंने और ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो हैंड हाइजीन ट्रेनिंग जैसी छोटी बात उनको ज्यादा आती होगी, इट कैन बी अजम्प्टेड। ओके, वेल वेयर एज कंट्रोल ग्रुप जो है हमारा जिसमें हमने वार्ड बी की नर्सेज लिए हैं उसमें सिंपली ऐसी नर्सेज हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन कोर्सेज नहीं करे हैं, तो अंडरस्टूड है कि उनको ट्रेनिंग की नॉलेज कम होगी, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके के फैक्टर्स आपकी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप में जो वार्ड बी में नर्सेज हैं वो ज्यादा हायर क्वालिफाइड हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वार्ड ए में जो नर्सेज हैं वो अंडर क्वालिफाइड है, लेकिन जब आपने हैंड हाइजीन का दिया तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने सीख लिया, जबकि कंट्रोल ग्रुप की जो नर्सेज थी वो पहले से सीखी हुई थी क्योंकि उन्होंने पीजी कोर्सेज किए हैं और उन्होंने जो भी कुछ किया है वो बहुत एडवांस रूप में किया है, वो बहुत एक्टिव स्किलफुल नर्सेज हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस रिसर्च में एक तरीके का क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसीलिए ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में तो इंक्लूड की गई है लेकिन इसका नाम रखा गया है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन्स। We will again quickly revise it. We will make two groups in this kind of a design without randomization. Pre-test is done. Intervention is given only and only to the experimental group. Post-test is done for both the groups and the control group is, yes, the control group is present. इसी वजह से ये क्वासी में include किया गया है। So this is the first design of the quasi. Second design we will discuss. Second design is the multiple time series design. इसका structure, in this we make two groups and that are measured repeatedly before and after the treatment which can focus on the trends. For example, if you want to, as a researcher, you want to know the effectiveness of anti-pollution campaign on the air pollution levels of your city. And if you want to do a quasi experimental study following the multiple time series design, what you will do, you will make a design like first you will divide the city first in city A and the comparison group will be in city B. In this quasi experimental design सिर्फ comparison group mention किया जाएगा,
कंट्रोल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब इसको फिर भी कंट्रोल ग्रुप ना होने के बाद भी इसको क्वासी में क्यों इंक्लूड किया गया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट वी विल स्टिक टू द एग्जाम्पल। इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, हमारा मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3, इसमें हम दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और हमारा कंपैरिजन ग्रुप दोनों में प्री टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। प्री टेस्ट हमने कंडक्ट किया, देन जो हमारा मंथ 5 आ रहा है उसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसमें हम लॉन्च करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे अपना एंटी पॉल्यूशन कैंपेन, और फिर उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे अपकमिंग मंथ्स में। वेयर एज जो कंपैरिजन ग्रुप है उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दी जाएगी, एंड आफ्टर दैट फॉर द मंथ 6, मंथ 7, मंथ 8 एंड सो ऑन हम दोनों में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे। सो लाइकवाइज व्हाट यू वी आर डूइंग, हम मल्टीपल रिपीटेड टाइम इंटरवल्स में अलग अलग ग्रुप्स का रीडिंग चेक कर रहे हैं, इंटरवेंशन देने के बाद आउटकम्स चेक कर रहे हैं। तो आउटकम्स चेक करने के बाद हम कह सकते हैं कि यस, रिपीटेड इंटरवल्स में हमने ये लिया है, तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप की बहुत अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हमारे पास उनकी रीडिंग्स है, तो हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा हो गया जिसमें हम सॉलिड कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल ग्रुप ना होते हुए भी इसको मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन को अलग अलग टाइम सीरीज और इंटरवल्स के डेटा होने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में इसको क्वासी में कैटेगराइज किया गया है। We will have a quick revision of the multiple series also. Okay. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है इसमें, यस। रेंडमाइजेशन नहीं, ठीक है। प्री टेस्ट होता है, यस। इंटरवेंशन दी जाती है ओनली एंड ओनली इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। पोस्ट टेस्ट कंडक्ट होता है दोनों में, और कोई कंट्रोल ग्रुप का इसमें प्रेजेंट नहीं है, बट यस अलग अलग इंटरवल्स हैं, तो कंपैरिजन हमने 3-4 बार कर लिया क्योंकि हर महीने के गैप में हमने एक अपना रिजल्ट अपनी डेटा को कलेक्ट किया है। सो दिस इज मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। Third kind of a design of quasi is the regression discontinuity design. It's a very interesting kind of a design under quasi. Here again we have two groups, experimental group and the control group. लेकिन जो participants हमने assign किए हैं या divide किए हैं into the experimental or the control group, उनको हमने divide किया है on the basis of a cutoff or a basis of a threshold, which can be a test score or the income or anything जो कि उनके लिए एक common threshold या cut off का काम करे। For example, अगर कोई यूनिवर्सिटी ये जानना चाहती है या इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करना चाहती है ऑफ द स्कॉलरशिप ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, फॉलोइंग द रिग्रेशन कॉन्टिन्यूटी डिजाइन वी विल मेक 2 ग्रुप्स, और 2 ग्रुप्स का नाम क्या होगा, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होगा कंट्रोल ग्रुप, और दोनों को हमने बिना रेंडमाइजेशन के बनाया है, लेकिन हमने कट ऑफ के आधार पे इनको क्रिएट करा है। कैसे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसकी 75% से ऊपर परसेंटेज है, ठीक। अब जैसे हम किसी चीज की इफेक्टिवनेस चेक करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो 75 के ऊपर जिनका मार्क्स आए हम उनको देंगे, तभी तो वो अचीवर्स और बन पाएंगे। अगर जिनके 75 से नीचे आ रहे हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे तो शायद हम उसमें उतनी इफेक्टिवनेस ना देख पाए। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 75% से ऊपर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका हम पहले प्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद हम उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम देंगे, एंड आफ्टर दैट बाय द एंड ऑफ मिड टर्म और बाय द एंड ऑफ द होल टर्म हम उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज मेजर करेंगे कि उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज कितना आया है। तो ये एक हमारा अजम्पशन है कि दे कैन हैव अ हायर जीपीए बिटवीन द 8.5 टू द 9 डिजिट। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमने कट ऑफ करके अपना स्कॉलरशिप का इंप्लीमेंटेशन करके देखा। वेयर एज इन द कंट्रोल ग्रुप हमने उनको डिवाइड किया उन स्टूडेंट्स को जिनकी परसेंटेज 75% से नीचे आई है, तो उनको हमने क्या किया, पहले प्री टेस्ट कंडक्ट किया और हमने उनको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी, तो उनका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज था वो लोअर जीपीए में रहा, दैट विल बी बिटवीन द 6.5 टू 7.5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो ये क्वासी का डिजाइन है, दैट इज रिग्रेशन डिस्कंटिन्यूटी डिजाइन, ये वो डिजाइन है जिसमें हम 2 ग्रुप्स बना रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल है एक कंट्रोल है, और ये दोनों ग्रुप्स हमने कट ऑफ के बेसिस पे बनाए हैं। विद कट ऑफ के बेसिस पे ही हम जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम इंटरवेंशन देंगे और उसके हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, वेयर एज कंट्रोल ग्रुप में भी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करेंगे लेकिन हम इंटरवेंशन नहीं देंगे। क्विक रिवीजन,
yes, in this design experimental group is present without randomization. प्री टेस्ट हम दोनों में कंडक्ट करते हैं, इंटरवेंशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप को दिया जाता है, पोस्ट टेस्ट दोनों का कंडक्ट होगा। यस, ये बहुत सॉलिड डिजाइन है क्योंकि इसमें कंट्रोल ग्रुप का प्रेजेंस है और हम बहुत ज्यादा सॉलिड कंपैरिजंस कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में से कौन ज्यादा बेटर है। So this is the third design, which is a very important design under the quasi studies. Last design for the today is the matching designs. ये भी बहुत interesting design है, in which again we have experimental group and the control group. लेकिन यहाँ हमने participants को divide किया है upon basis of the matched important features, जो कि हो सकता है age, gender, उनकी education, severity of illness या फिर उनका IQ level. नाउ अगर आप एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हैं और आप मैचिंग डिजाइंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक एग्जांपल है दैट वी कैन अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंटीनेटल एजुकेशन ऑन द नॉलेज ऑफ द डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन, और आप मैचिंग डिजाइंस को फॉलो करके इस स्टडी को करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे दो ग्रुप। अगेन one is the experimentation group and the second one is the control group. लेकिन लास्ट प्रीवियस स्टडी में हमने देखा था कट ऑफ के आधार पे बनाया था। अभी मैचिंग डिजाइंस में क्वासी में आप मैचिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि एज, वो प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी एज 20 to 25 है क्योंकि उनको कम नॉलेज होती है। एजुकेशन क्या है उनकी, 10th है या 12th है। ग्रेविडा मींस कितने टाइम प्रेग्नेंट है और उस समय पे उनकी प्रेगनेंसी की एज क्या है, कितने महीने से वो प्रेग्नेंट है। तो ये कुछ मैचिंग वेरिएबल्स हैं जिनके बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, मतलब दोनों ग्रुप्स में सिमिलर मैचिंग वेरिएबल्स वाली प्रेग्नेंट लेडीज को हम लेंगे। दोनों ग्रुप्स में हम प्री टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, फाइन। और फिर जैसा कि नाम कहता है एंटीनेट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम अपनी इंटरवेंशन जो कि ये एंटीनेटल एजुकेशन प्रोग्राम हम देंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे उन प्रेग्नेंट लेडीज को। आफ्टर दैट वी विल कंडक्ट द पोस्ट टेस्ट। Whereas in the control group हम कोई एजुकेशन नहीं देंगे और उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो मैचिंग डिजाइंस में भी एक हम क्वासी स्टडी ही कर रहे हैं, बिकॉज क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंडमाइजेशन नहीं होता है इसीलिए एक लेवल नीचे है। प्री टेस्ट है तो कंपैरिजन अच्छा होकर पाएंगे। इंटरवेंशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप को दी जाती है। पोस्ट टेस्ट करेंगे तो हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों को कंपेयर करके बहुत अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स को समझ पाएंगे। और हाँ, कंट्रोल ग्रुप है तो कंपैरिजन बहुत अच्छा होगा, और कंपैरिजन अगर अच्छा है तो इंटरनल वैलिडिटी ऑफ दिस डिजाइन बहुत ज्यादा हाई होगी। So these are the four major designs. Now we will have a quick recap. Again you have to pause this slide, learn this slide, very important slide, because अगर ये चीजें आपने समझ ली कौन सी डिजाइन में क्या हो रहा है, तो आप कहीं पे भी, आई थिंक आपको कहीं पे कोई हर्डल नहीं आना चाहिए। तो आज जो हमने पहला डिजाइन पढ़ा अंडर क्वासी, दैट इज द नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, यस। कंट्रोल ग्रुप होता है, यस। कंपैरिजन हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, यस। प्री टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं दोनों में, यस। और इंटरवेंशन हम सिर्फ देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट होता है दोनों में। तो ये फीचर लाइन वाइज आप समझिए, पढ़िए, याद करिए, इट इज योर जॉब। सेकेंड इज द मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन, जिसमें हमने देखा यस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। कंपैरिजन बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि प्री टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो अलग अलग मंथ पे कर रहे हैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। एक्सपेरिमेंटेशन इंटरवेंशन हमने दे दिया, उसके बाद अगेन पोस्ट टेस्ट हमने कंडक्ट करा। जैसे इंटरवेंशन दिया मंथ 5 पे, तो 6, 7 एंड 8 हमारा पोस्ट टेस्ट होगा। देन थर्ड काइंड ऑफ अ डिजाइन इज द रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी, ये मैंने आपको बताया था। इसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, यस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ। जो भी हमारा कट ऑफ के ऊपर के होंगे वो एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे, जो कट ऑफ के नीचे होंगे वो कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। कंपैरिजन दोनों ग्रुप्स कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटेशन के बीच में हमने किया है, इसीलिए ये क्वासी है। और प्री टेस्ट भी हमने करा, इंटरवेंशन भी हमने दी, सिर्फ रूल के आधार पे दी। जिनका कट ऑफ के ऊपर थे बस उनको हमने एक्सपेरिमेंटेशन दिया, और पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट किया। फोर्थ डिजाइन इज द मैचिंग डिजाइन। मैचिंग डिजाइन में यस हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्रिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग वेरिएबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंट्रोल ग्रुप भी बनाया, उसमें भी हमने सेम पार्टिसिपेंट्स रखे जिनके वेरिएबल्स मैचिंग थे।
और फिर हमने अपनी स्टडी में कंपैरिजन भी किया है, प्री टेस्ट भी किया है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने इंटरवेंशन भी दिया है, एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो कंडक्टेड द पोस्ट टेस्ट. So just pause on this slide, go through it, learn multiple times. आंखें बंद करके देखो, अपने आप से क्वेश्चन करो, है ना, बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, किसमें प्री टेस्ट होता है, किसमें पोस्ट टेस्ट होता है, कंपैरिजन कितना होता है, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप इसमें है या नहीं है. ये अगर आपने चीजें याद कर ली, आई थिंक यू विल नेवर face any hurdle in experimental researches. Quick revision of the quasi designs just to understand the internal validity. अगेन बात कहाँ आ गई, कोर एलिमेंट्स पे. तो जो नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है या जो भी 4 हमने पढ़े हैं उसमें मैनिपुलेशन तो भैया जरूर हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्वासी स्टडी है. रेंडमाइजेशन की हम बात करें तो रेंडमाइजेशन इन चारों स्टडीज में किसी में भी क्वासी के अंडर नहीं होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोल ग्रुप, तो नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन में कंट्रोल ग्रुप है, मल्टीपल डिजाइन में नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल सीरीज में आपने डेटा मंथ वाइज इंटरवल्स में लिया है तो ये क्वासी में डाल दी गई है. रिग्रेशन कॉन्टिन्यूटी में भी कंट्रोल ग्रुप है, मैचिंग में भी है, और क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फीचर्स आ गए हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के कोर एलिमेंट्स आ गए हैं, इसीलिए हमने इनकी इंटरनल वैलिडिटी क्या डाल दी है, मॉडरेट. सो आज हमने क्या पढ़ा, हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा ये भी हम देख लेंगे. हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा ऑल प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जिनको वीकेस्ट वैलिडिटी का माना जाता है, ठीक है, हमने कवर किया. आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, दैट इज क्वासी. ना हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं क्वासी इज वेरी डिफरेंट, क्वासी कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आएगा, मैं कितनी भी कोशिश करूं क्वासी मुझे समझ में नहीं आता है. लेकिन आई चैलेंज यू कि अगर आपने ये स्लाइड्स पढ़ी हैं, सेशन को सुना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में नहीं आनी चाहिए. So you can beat your manifestation in a positive way. Okay, so what we have covered today, that quasi studies have moderate validity, जिसमें हमने नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन पढ़ा, मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन पढ़ा, रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन पढ़ा, और मैचिंग डिजाइंस भी हमने पढ़े. Further sessions will include the true experimental designs which have the strongest validity, and we will cover all of these topic in the upcoming sessions. So once again, I will say thank you to you for joining this session, coming to this platform for learning research, and don't forget you are never alone. I'm always with you in the pathway or in the journey of research. Do leave your area or the department from which you belong to, and you can drop your queries also in the comment section. I will make sure that I answer them. So thank you once again, and thank you, and stay tuned for the further sessions.